Very good morning, students. Welcome to Gyanmanji Vidyapit Mova online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So आज हम देखेंगे केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 के अंदर जो हमारा डे 3 है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम नायलॉन और रेयन के बारे में देखने वाले हैं। सो नायलॉन और रेयन क्या है, उससे पहले हमने डे 2 के अंदर जो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखा था, तो उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। First one is a NCERT exercise, question number 9 on your page number 41. If you have NCERT exercise book, so please open, otherwise आप directly यहाँ से solve कर सकते हो. So question is that Rana wants to buy a shirt for summer. Should he buy cotton shirt or shirt made up from synthetic materials? Advise Rana to giving your reason. राना को कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए, सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई या कॉटन से बनी हुई? सो राना शुड बाय अ शर्ट इट इज मेड अप ऑफ कॉटन बिकॉज कॉटन कैन बी एब्जॉर्ब द वाटर, वो एब्जॉर्ब कर सकता है. सो इट विल शोक अप एनी स्वेट्स प्रोड्यूस ड्यू टू द हाई टेम्परेचर्स इन समर, वो काफ़ी जो पसीना निकालता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है. And a shirt is made up of synthetic fiber will do not absorb the sweat and hence will be uncomfortable to wear in summer. ये होगा उसका आंसर. Next one, practice question number 1.1 on your supplementary book page number 2. List the two advantages and two disadvantages of synthetic fiber. So the advantages of synthetic fiber is they are stronger and more durable than a natural fiber, and the second one, this stretch easily and thus can be used to make stretchable fibers. ये उसके advantages है. Disadvantages क्या है synthetic fibers के? They catch fire easily and melt when they catch fire. वो आग जल्दी से पकड़ लेती है और जब आग पकड़ लेगा, हमने जो पिछली बार देखा था उसके अंदर, तो आग जल्दी से पकड़ ली तो क्या होगा, वो जल्दी से वो मेल्ट हो जाएगा. Then second one, they do not absorb the sweat moistures well, so they can be uncomfortable to wear during the summers. वो पसीना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसके वजह से वो समर के अंदर कंफर्टेबल नहीं रहेगा. Practice question number 1.3 on your SB page 2. So question is there, state if the following statements are true or false and correct statements that are false. So यहाँ पे true और false लिखना है. Natural fibers can be cause skin allergies, नहीं, वहाँ पे allergies नहीं होती, ये false आएगा. Second, synthetic fibers can handle heavy loads without the breaking. Yes, उसकी strength ज़्यादा अच्छी होती है, तो यहाँ पे आएगा true. Synthetic fiber do not absorb the lots of water. Yes, यहाँ पे भी आएगा true. Next one, practice question number 1.5 on your SP page number 2. Which fiber uh, should Ankita make a rope with the pool and cupboard from the ground floor of her building to the first floor? So Ankita should make a rope using the synthetic fibers as they are stronger and more durable and hence will be able to bear the weight of the cupboard. वो cupboard को weight उठाने के लिए सक्षम होता है. So that's why we can use the fibers, synthetic fibers rope. So now the next topic is rayon and nylon, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी. So rayon and nylon, उसके बारे में हम देखें. ये भी एक फाइबर है, वो किससे बने होंगे उसके बारे में हम डिटेलिंग चाह रहे हैं. So there are the four main types of synthetic fibers. Today let's learn about the rayon and nylon. आज के लेक्चर में रेयन और नायलॉन के बारे में देखेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में देखेंगे. सो फर्स्ट, व्हाई वाज रायन डेवलप, उसको क्यों डेवलप करते? सिल्क इज एन एक्सपेंसिव फाइबर, सो साइंटिस्ट डेवलप a form of artificial silk by a chemically
ट्रीटिंग वुड पल्प, लकड़े के पल्प में से वो रायोन बनता है. दीज फाइबर्स आर कोल्ड रायोन. बिकॉज ऑफ रायोन को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सिल्क, उसको ये भी हम बोल सकते हैं बिकॉज ओरिजिनल सिल्क है उस वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. उसकी वजह से हमारे जो साइंटिस्ट है उसने रेयन को डेवलप किया, जो किसमें से बनेंगे, केमिकल वुड पल्प के साथ केमिकली उसको मिक्स कर कर उसमें से फाइबर बनाएंगे जिसको बोलेंगे रेयन. सो द टेक्सचर ऑफ appearance of the rayon fibers resembles silk, वो सिल्क के जैसा ही होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. आप इमेज के अंदर देख सकते हो इस तरह का कपड़ा जो होता है इसको हम बोलेंगे रायन. सो द व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रायन. सो इट इज lustrous and shiny. So the texture of the appearance of a rayon fibers resemble silk. So it is also known as a artificial silk. वो lustrous और shiny होता है. Okay, like a diamond. So इस तरह से वो ज़्यादा lustrous और shiny होने की वजह से वो उसको हम artificial silk बोलते हैं. Rayon का यूज़ क्या है? So rayon can be mixed with the natural fibers to make the common fibers, make common fabrics. So rayon mixed with the cotton can be used to make a bed sheet. यहाँ पे आप देख सकते हो कि रायन के साथ हम अगर कॉटन मिक्स कर दे तो कॉटन और रायन में से हम एक बेड शीट बना सकते हैं. सो इट इज अ फैब्रिक्स. सो वी कैन मेक द कॉमन फैब्रिक्स बाय यूज ऑफ द रायन. नेक्स्ट, rayon mixed with the wool can be used to make carpets. वुल के साथ अगर हम रायन को मिक्स कर देंगे तो वो क्या बनाएगा, कारपेट्स. आप सेकंड फिगर के अंदर देख सकते हो रायन प्लस वुल इज इक्वल टू कारपेट्स. व्हाट इज द यूजेस ऑफ रायन. रायन में से टाई बन सकती है, शर्ट बन सकते हैं, बेडशीट्स बन सकती है, कर्टेन्स बन सकते हैं. तो ये कुछ कॉमन फैब्रिक्स है जो हम रेयन के साथ नेचुरल फाइबर्स को मिक्स करके उसमें से बना सकते हैं. सो उसके काफ़ी सारे यूजेस है, तो मैंने एज ए एग्जांपल यहाँ पे आपको काफ़ी यूजेस दिखाए. नाउ अभी हम बात करेंगे नायलॉन के बारे में. सो नायलॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर. कोल, वाटर और एंड को ये तीनों को मिक्स करके उसमें से एक फैब्रिक बनेगा जिसको हम बोलेंगे नायलॉन. सो नायलॉन की प्रॉपर्टीज होती है लस्ट्रियस. ओके, देन इलास्टिसिटी, उसको वो स्ट्रेचेबल हो सकता है लाइक रबर. नेक्स्ट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है. और हैवीली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है और उसका वेट कैसा होगा, लाइट वेट होगा. एंड इजी टू वॉश, वॉशेबल भी हो ये होता है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, लस्टूरियस, इलास्टिक, वेरी स्ट्रॉन्ग, देन वेरी लाइट और काफ़ी हल्का होता है, उसका वेट ज़्यादा नहीं होता है और इजी टू वॉश, इजीली वो वॉश कर सकते हैं. यूजेस ऑफ नायलॉन, उसके यूज़ कहाँ पे होते हैं. सो नायलॉन का यूज़ हम पैराग्लाइडिंग के अंदर भी, जो वहाँ पे उसका जो पैराग्लाइडिंग का पूरी जो पैराग्लाइड होती है उसके अंदर यूज़ होता है. क्लाइंबिंग रोप्स, रोप्स क्लाइंब करने के लिए जो रोप्स यूज़ होती है उसके अंदर भी हो सकता है. क्लाइंबर्स ज़्यादातर उसका यूज़ करते हैं. टूथ ब्रश, जो हमारा ब्रश है उसके जो टूथ पिक हो, टूथ जो हमारा ब्रश है उसके ऊपर जो आप देखते हैं जिसकी वजह से हम हमारे टीथ को क्लीन कर पाते हैं, वो जो हिस्सा है वो उसमें से बने होते हैं नायलॉन में से. देन फिशिंग नेट्स, मछली पकड़ने की जो नेट्स होती है वो भी नायलॉन में से बनी होती है. तो ये उसके कुछ यूजेस हमने देखे. सो आज हमने देखे नायलॉन और रेयन. So now it's time to solve NCERT exercise question number 2 on your page number 41. If you have NCERT book, please open, otherwise you can directly solve your screen. So mark the correct answer. Rayon is a difference from the synthetic fiber because it has a silk and silk-like appearance. Then it is obtained from the wood pulp. Its fibers can also be woven like those natural fibers.
So the answer, correct answer, it is obtained from the wood pulp. Next, NCERT exercise question number 4. Give the example which indicate the nylon fibers are very strong. So answer is that the examples of given below show how strong the nylon fibers are. They are used to make the paragliding की जो parachutes होते हैं, which carries the heavy loads. Then they are used also to make fishing nets which can carry the heavy weights. वो ज़्यादा weight को उठा सकते हैं. That's why it is a best example to the nylon is a very strong material, very strong fiber. Practice question number 2.6 on your supplementary book page number 4 SB4 उसके पर 2.6 होगा. So which fabric will you use to make a swimming costume and why? स्विमिंग करने के लिए हम नायलॉन का यूज करेंगे. I will use the nylon to make swimming costume because the nylon is elastic, strong and light and water resist. वो पानी को resist कर सकता है. That's why हम उसका यूज कर सकते हैं as a swimming costume. So I hope सभी क्वेश्चन आंसर आप सबने यहाँ से समझ लिए. सभी पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं है. फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, you will definitely ask me. I will definitely solve you down. Okay. Next, जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैंने आपके साथ सॉल्व करा है, सारे क्वेश्चन आंसर आपको कंपलसरी अटेंड करके डायरेक्टली फेयरबुक के अंदर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखकर फोटोग्राफ क्लिक करो और जल्दी से सेंड कर दो. ओके. सो होमवर्क रेगुलर होना ज़रूरी है. सो अभी के लिए हम यहाँ तक रखेंगे. नेक्स्ट, आज हमने कौन से सप्लीमेंट्री बुक यूज़ किए, बुक के कौन से पेजेस यूज़ किए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. सो गाइस, आज हमने सप्लीमेंट्री बुक 3 के ऊपर कॉन्सेप्ट नेम नंबर 2 में रेयन और नायलॉन के बारे में देखा. ओके. उसकी प्रॉपर्टीज, सोर्सेस और यूजेस के बारे में हमने देखा. देन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने फाइबर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में से आज हमने कुछ नहीं किया, बट 2.6 क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी आज किया है वो आपको करना है. सो जो भी क्वेश्चन वीडियो के अंदर है वो सारे क्वेश्चन आपको करना है. इसके अलावा नेक्स्ट हमने यूज किया है सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 4 के ऊपर से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2.6, वो हमने यहाँ से हमने यूज किया है 2.6, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. वो क्वेश्चन भी आपने सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 4 के ऊपर आपको मिल जाएगा. सो अभी सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप मुझको पूछिए, मैं आपके सारे डाउट सोल्व कर दूंगा. सो अभी हम यहाँ तक रखेंगे. सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर. फन विद साइंस. एंजॉय द साइंस.